Hello, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start our new chapter, which is Kingdom Animalia. This is the most awaiting and exciting chapter, but for some students, it's quite boring because they find that we aren't able to remember so many terminologies and so many phylums, so many species. So for especially those students, we are here with a new video of this chapter, Kingdom Animalia, and I'll make sure that you understand the concepts. अगर आप मेरे साथ साथ you will keep on revising stuff, if you will keep on saying to yourself what I ask you to, so you would be easily able to ace this chapter. And this chapter contains the most MCQs. यहाँ से अगर हम MDCAT की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है. Then we also come across with NET, we have NUMS test, we have AQ. तो इसके अंदर भी we have questions from this chapter. So I'll try to cover all the MCQs, all the basic points. So stay tuned to the channel. Now let's just get started. हमने अब नया चैप्टर स्टार्ट किया which is diversity among animals and we will study kingdom Animalia यहाँ पे. Now you know that there are total 1 million species. ठीक है, alright, we have 1 million species in the whole world, and still there are species that are left to be discovered, and scientists are trying to discover them. So rows we have new discovery of new species, new organisms, but till now 1 million species are being discovered that they live in the world, right? तो अब इतनी जब species बना दी तो there must be a system to characterize them, to basically classify them, so it would be easy for the generation and it would be easy for the people to study about them. Alright, तो our जो हमारे पास first जो scientist थे that was एरिस्टोटल, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्लासिफिकेशन का. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन का. ऑल राइट, अब इन्होंने बोला कि एक तो वी हैव लिविंग थिंग्स, ठीक है, दूसरा वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को ही करेक्टराइज और इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर. ठीक है, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन की. उसके बाद हमारे पास बहुत सारे और साइंटिस्ट आए. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, 4 आई, फिफ्थ आई, फिफ्थ को और मॉडिफाई किया गया. तो वी हैड अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन उस दौरान से ही. न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू साइंटिस्ट आ रहे हैं, दे कम अप विद द न्यू पॉइंट्स दैट आर वैलिड और पुराने वाले इनवैलिड हो रहे हैं. सो वी हैव डिस्कवरी. साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग, ठीक है, what is hidden. तो वही होती रही है. टुडे वी हैव 5 किंगडम्स दैट वाज गिवन, that classification was given by R.H. Whittaker and it was also modified by someone else as well. तो ये कुछ हिस्ट्री थी कि कैसे हुआ, हम क्यों पढ़ रहे हैं एंड ऑल दीज. नाउ यू नीड टू, अगर आपको नहीं पता कि वी हैव सम टेक्सोनॉमिक लेवल एज वेल, जैसे कि स्पीशी, जीनस, क्लास, फाइलम, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें दैट यू मस्ट नो. ठीक है, अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की. नाउ अंडरस्टैंड दिस किंगडम एनिमेलिया इज ऑल्सो नोन एज योर मेटाजोआ. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का दूसरा नाम मेटाजोआ भी है. एक और थिंग कि जो एनिमा है, वर्ड एनिमा निकला है लैटिन से और जिसका मतलब होता है ब्रेथ या जिसका मतलब होता है सोल. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का मतलब है, एनिमा का वर्ड का मतलब है ब्रेथ और योर सोल. नाउ दिस किंगडम एनिमेलिया इज ऑल्सो नोन एज योर मेटाजोआ. हम इसको मेटाजोआ भी बोलते हैं. अगेन दिस मेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. एक को हम बोलते हैं, वी हैव पैराजोआ, दूसरा है यू मेटाजोआ. फर्स्ट इज योर पैराजोआ, देन यू हैव यू मेटाजोआ. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस कि ये क्या है. अब पैराजोआ मीन्स
you have no tissue, आपका कोई टिश्यू नहीं है. You don't like the but like टिश्यू नहीं है, but still the organism is multicellular, and I will tell you why it is multicellular and still not it does not have tissues. ठीक है. Now there is one phylum that belongs to the group Parazoa that I'll let you know as well. अब Eumetazoa की बात करें तो they are multicellular. Alright, and like जितने भी phylums हैं except one, they all are Eumetazoa. They have tissue, they have some even have organ, and some even have organ system. Like many of them have the organ system, and from organ system they make their organism. ठीक है, ये है. Now let's study कि हमारे पास total. Okay, I hope this classification is clear. Parazoa, ये Eumetazoa. हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, like from A to Z we'll discuss every classification, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए और आपको याद करने की ज़रूरत ना हो. आपको समझ ही इतना अच्छा आ जाएगा. ठीक है. अभी तक मैंने क्या बोला कि वी हैव मेटाजोआ, एनिमेलिया को मेटाजोआ बोलते हैं. मेटाजोआ के दो ग्रुप्स हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. पैराजोआ में सिर्फ एक फाइलम आता है, हम फाइलम्स की भी बात करते हैं. इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता, लेकिन मल्टी सेलुलर कैसे, उसकी बात हम आगे करेंगे इसी वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो. बट I'll make sure कि I make you understand every single thing from A to Z, from zero to hero, everything. Then we have Eumetazoa. हमारे पास almost like all the phylums are do belong from Eumetazoa except one that I'll tell you. Then इनके पास they are multicellular, plus they इनका टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं. ठीक है. अब आगे बात करते हैं हम फाइलम्स की यहाँ पे. ठीक है. आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी. ठीक है. हम इसको आगे आके डिस्कस करते हैं, बट लेट मी रेज इट राइट नाउ. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव फाइलम्स. वी हैव टोटल 33 फाइलम्स. हमारे पास 33 फाइलम्स हैं. आउट ऑफ देम हमने दो कैटेगरीज बना दी. कुछ हमारे पास फाइलम्स कहलाते हैं मेजर, कुछ कहलाते हैं हमारे पास माइनर. ठीक है. अब उन्हीं का हम नाम लिखने वाले हैं कि हमारे पास टोटल होते हैं 9 मेजर होते हैं एंड 8. लेट मी काउंट. यस, 9 हमारे पास मेजर होते हैं. 9 हमारे पास मेजर हैं एंड माइनर वी हैव 24. अब ये मेजर माइनर कैसे हैं कि द मेजर कैटेगरी, जो मेजर फाइलम्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज होते हैं दैट वी स्टडी एज वेल. एंड माइनर के अंदर लाइक देयर नंबर ऑफ स्पीशीज आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू द अदर फाइलम्स. इसलिए हमने उसको माइनर फाइलम्स में रखा हुआ है. सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द नेम्स ऑफ द फाइलम, और आपको उस ही मैनर के अंदर उसी सीक्वेंस में यू हैव टू ऑल्सो लर्न. उनके नाम भी आपको उसी सीक्वेंस में याद करने, सो इट गेट्स ईजी फॉर यू. ठीक है. फर्स्ट फाइलम दैट इज पोरीफेरा, जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा और स्पंजेस. सेकेंड इज योर नाइडेरिया. नाइडेरिया का दूसरा नाम होता है सिलेंट्रेटा. थर्ड वी हैव प्लेटीहेलमिंथेसिस. प्लेटीहेलमिंथेस, या जिनको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स. लाइक मेरे साथ आप याद करते जाएं. ठीक है. इट विल गेट ईजी फॉर यू. देन वी हैव एस्केलमिंथेसिस
एस्केलमेंथिस को हम लोग निमाटोड्स भी बोलते हैं, या हम इसको निमाटोडा भी बोलते हैं, या इसको राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। फिफ्थ वी हैव इज एनालिट्स। एनालिट्स को दूसरा नाम होता है सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोला जाता है। देन वी हैव एस्केलमेंथिस, एनालिट्स, एंड देन वी हैव वी हैव मोल्यूस्का। मोल्यूस्का को हम लोग सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोलते हैं। देन वी हैव आर्थ्रोपोडा, जिनको हम जॉइंट लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद वी हैव एखाइनोडर्मेटा, जिसको हम स्पाइनी स्किन्ड बोलते हैं। एंड द नाइन्थ वन इज कॉर्डेटा, जहाँ से वी बिलोंग। ऑलराइट, सो दीज आर बेसिकली टोटल फाइलम्स हमारे पास हैं, और आई वॉन्ट यू कि आप इसको इसी मैनर के अंदर याद करें, सो इट गेट्स वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न थिंग्स। ठीक है, अगर आपको बेसिक याद हो जाती है तो बहुत सारे आपके MCQs, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी यहीं से ही इट विल गेट क्लियर आउट। फर्स्ट हमारे पास है पॉलीफेरा, देन नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिट्स, मोल्यूस्का, आर्थ्रोपोडा, एखाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। So these are 9 phylums, 9 major phylums जिनके आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, I hope now this is clear to you. Now let's begin. अब बात करते हैं आगे। Let me just minimize it. ठीक है, all right. Okay, we discussed हमारे पास मेटाजोआ है, we have पैराजो एंड यूमेटाजोआ। नाउ अंडरस्टैंड, पैराजोआ में मैंने बोला था पैराजोआ। अब हम बिल्कुल चलेंगे कि पहले बहुत ही पुराने एलिमेंट्स कौन से थे, हम उनको पहले लाएंगे, फिर हम बिल्कुल ही न्यू लोगों पे जाएंगे। ठीक है, पैराजोआ में हमारे पास वी हैव वन फाइलम दैट इज पॉलीफेरा। पॉलीफेरा बिलोंग्स टू पैराजोआ। मैंने बोला था कि जो पैराजोआ होते हैं दे डू नॉट हैव टिश्यू, दे आर मल्टी सेल्यूलर। अब ऐसा क्यों बोला? बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? कैन लाइक इफ यू नो राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू तब बनते हैं, टिश्यू हमारे पास तब बनते हैं जब सेम ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ टिश्यू। ऑल राइट, लेकिन यहाँ क्या होता है, दे आर नॉट सेम सेल्स, डिफरेंट तरह की सेल्स होते हैं। दैट आई डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जब हम डिटेल में पॉलीफेरा को डिस्कस कर रहे होंगे। बट टिल दैट आप इतना याद रखें कि डिफरेंट सेल्स होते हैं, सो दे कैन नॉट फॉर्म टिश्यू। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर मल्टी सेल्यूलर बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ऑल राइट, तो पैराजोआ में बस पॉलीफेरा आता है विच इज़ आवर फर्स्ट फाइलम। हमारे पास 9 फाइलम्स थे, एक को कट कर दिया, कितने बच गए? वी हैव 8 फाइलम्स नाउ लेफ्ट। ठीक है, 1 यहाँ चला गया। टोटल कितने फाइलम्स थे? 9 थे। ठीक है, 9 में से आपने 1 माइनस किया, कितने हो गए? 8 हो गए। बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं दे ऑल आर हियर। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग थे दे आर हियर। नाउ अब क्या होगा? ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर कि यहाँ तक हमने क्या बेसिक बात की है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास कैसे इस यूमेटाजोआ के अंदर अब किन बेसिस पे यूमेटाजोआ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट वील डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल and keep watching my next videos. Till then, take care.